Namaskar, I am Lipsa and I welcome you all to a fresh new episode of Centurion Vodcast, ladies and gentlemen. As always, I have caught hold of somebody very, very accomplished and who's going to feed us with a lot of information about things that you might be interested about. And even if you haven't been interested in so far, you are going to develop a lot of interest in it. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming none other than Dr. Mukundji Pandey, one of the most accomplished associate professors in mechanical engineering, Centurion University of Technology and Management. Hi, sir. Welcome to this wonderful episode of the podcast. Thank you for finding time and joining us. सर पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कितने सालों से आप सेंचुरियन के साथ हैं? I have been here for 9 years. 9 years. Yes. Wow. And I joined in 1st November 2016. So just in November 1, I completed 9 years. 9 years. That's a very, very long time. I'm sure you must be loving the university a lot Yes. for, to be working for such a long time. Yes, this is very good place to work, and we get opportunities to work in different platforms where we can perform and can show the things to students, what is happening in teachings and what is happening in means we can show. 9 साल हो गया आपको जी, जी, यहाँ जी, पे सेंचुरियन में. सो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी यहाँ पे कैसे रही है सो फार. जब आपने ज्वाइन किया कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ तो आपके दिमाग में होगा. हाउ डिड द यूनिवर्सिटी टर्न आउट टू बी लाइक? जी, जब मैंने ज्वाइन किया 2016, 1 नवंबर 2016 को, तब यूनिवर्सिटी में नए चीज़ आ रहे थे, जैसे लाइक वी आर गोइंग टू ओपन 3D एक्सपीरियंस लैब, जो हमारा सिमुलेशन लैब है, जो AR/VR लैब है, तो वो जस्ट ओपन हो रहा था. तो जस्ट हम क्या हुआ थे कि उस पे हम इनरोल हुए थे. तो तो उस टाइम कुछ पता नहीं था. सो वी हैव नेवर डन लाइक simulations, what was that, but we learned because DN sir always told us ki सीखो, learn. So you have to learn so that you can make students to learn. That's true. Yes. A teaching learning experience. Yes. So जो आगे पढ़ाई होता था, means what we have done in BTech, that was totally different. So that is like more about theoreticals and practicals. Practicals means only experimentation. But there was no simulations. In place of simulations, there was only making CAD models or something like using SolidWorks and other softwares like CATIA. But now we are doing simulations. Okay. So अभी क्या होता है कि वी विल मीन्स जैसे इंडस्ट्री होता है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, बट दैट प्रोडक्ट इज फिजिबल और नॉट, हाउ टू टेस्ट इट, राइट? ओके, सो वी हैव टू चेक थ्रू सिमुलेशंस दैट इज फिजिबल और नॉट. We have to do CFD simulations or FEA simulations. CFD means computational fluid dynamics and FEA means finite element analysis. So finite element analysis is basically for knowing the stress and strain. Means whether something is of what type of stress. If you are applying some force, what type of stress is acting, developing, what are the strains, what is the displacement. Means आप कोई जैसे कोई भी मेटल रॉड है, आप उसको खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, उस पर ट्रांसवर्स या कोई भी फोर्स लगाएंगे तो कितना स्ट्रेस हो रहा है, क्या स्ट्रेन हो रहा है, ये जैसे हम एक्सपेरिमेंट में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन डालते हैं, उससे हम मेजर कर लेते हैं. लेकिन अभी क्या है, सिमुलेशंस में हम उसको डायरेक्टली FEA से हम उसको पता कर सकते कितना हो रहा है, क्या हो रहा है. उसी तरह जैसे देखिए व्हीकल क्रैश टेस्ट होता है, हाँ जी. तो वो रियल में क्या होता है, जो टाटा या दूसरे कंपनी जो कर रहे हैं, क्रैश टेस्ट कर रहे हैं, उसमें कितना सारा पैसा लग रहा है. सो पहले सिमुलेशंस में भी हमको पता चल सकता है, और सिमुलेशंस में भी ये सब टेस्ट होता है, राइट. तो जैसे ANSYS हो गया, फिर 3D एक्सपीरियंस हो गया, हम जो
यूज़ कर रहे हैं सिमुलिया डसॉल्ट का, उसमें भी हम लोग ये सब करते हैं टेस्टिंग वगैरह। तो अभी जो हमारा ई रिक्शा यूनिट आपने देखा होगा जी। स्काई राइडर का, तो जो व्हीकल डेवलप हुआ है उसके पहले उसका टेस्टिंग वगैरह हुआ है, क्रैश टेस्ट हुआ है, स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ है, whether that will survive or not with so much of passengers. If the 6 persons are sitting, so what will be the stresses if there is fracture or not? If there is some stresses or fracture is developing, then how to eliminate it? राइट। तो मान लीजिए हम उसको इसी व्हीकल का एक कैड मॉडल बनाए कंप्यूटर में, और उसको हम सेम जितना भी पैसेंजर्स का लोड हुआ है एज्यूम करके हमने डाला। अब क्या हुआ, हमको पता चल रहा है भाई कि एट सम पॉइंट देयर इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मींस एट सम पॉइंट you will see there is strain and stresses that are developing, so you have to redesign it to eliminate that. You have to either increase the cross section, decrease the cross section, okay, कोई भी क्रॉस सेक्शन है या थोड़ा सा डिजाइन को हम चेंज करके देखेंगे कि whether that will reduce the stresses or not. राइट। So that should be within the permissible limit. अब ये होने के बाद बहुत सारा ये स्ट्रेंथ टेस्ट एफईए होने के बाद एफईए हम सीएफडी पे जाते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। अब ये एरोडायनेमिकली बॉडी ठीक है या नहीं, ठीक है। अभी ये कोई व्हीकल चल रहा है एरोडायनेमिकली कि ये ठीक होना चाहिए, नहीं ठीक होगा तो बॉडी स्पीड जो व्हीकल पकड़ेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो उसका भी टेस्ट हम लोग करते, उसके बाद ही हम उसको डिजाइन वगैरह एक्चुअल में करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। अभी देखिए हमारा एक जैसे सुपर वी का ड्रोन है, ये जो सेंचुरियन में ड्रोन बन रहा है, उसका भी टेस्टिंग, उसका सीएफडी टेस्टिंग हुआ। अब ये प्रोपेलर है क्वाडकॉप्टर, 4 प्रोपेलर का क्वाडकॉप्टर, वो प्रोपेलर कितना आरपीएम में घूमेगा, तो कितना थ्रस्ट जनरेट होगा और कितना लिफ्ट मिलेगा, तो वो सब हम सिमुलेशन में देख लेते हैं। उसके बाद हम उस आरपीएम का मोटर लेंगे, अगर हमारा थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो हम प्रोपेलर का डिजाइन चेंज करेंगे और थोड़ा बॉडी का डिजाइन चेंज करेंगे, तो कितना वो लोड ले पा रहा है, पे लोड भी कितना ले पाएगा, वो सब सारा सिमुलेशन में हो जाता है। ये सब एक्सप्लो सिमुलेशन सिमुलिया का आ रहा है, डसॉल्ट का ही है, चाहे आपका एनसिस का फ्लुएंट हो जा रहा है, सीएफएक्स हो जा रहा है, ये सब सारा में पता चल जाता है। उसके बाद ही ये प्रोडक्ट डिजाइन के लिए जाते हैं। तो बेसिकली सीएफडी हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स टेस्टिंग, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड कोई फ्लो हो रहा है तो एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर से, जैसे हमारा व्हीकल हो गया, ओके, एक्सटर्नल, इंटरनल बॉडी, पाइपलाइंस, ब्लड वेसल्स, तो सारा में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स हम जो फ्लूइड हो गया उसको प्रॉपर्टीज देके टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक काम कर रहा था सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में, तो उसमें नैनो पार्टिकल्स वगैरह डालकर उनको टेस्ट करना था कि सोलर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर क्या होता है। एक समझिए एक रिसीवर ट्यूब, एक पाइपलाइन होता है, उसके अंदर से हम फ्लूइड को भेजते हैं, अब वो क्या करता है सोलर रेडिएशंस को कंसंट्रेट करके देता है। ओके। बेस पे ऊपर से कंसंट्रेट करेगा, नीचे एक मिरर टाइप होता है, कंसंट्रेट करके देता है। जो हीट को दे रहा है वो जो फ्लूइड हीट को एब्जॉर्ब कर, अब उस हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहे पावर प्लांट के लिए यूटिलाइज कीजिए, यू कैन यूटिलाइज फॉर different heating purposes, like for cleaning of clothes, for what means for drinking water, any means whatever heat जहाँ पे भी वार्म जहाँ या पर, हीट हाँ, की जरूरत तो हो। उसके लिए अब नैनो पार्टिकल्स हम डाल के उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा हीट को अपने पे एब्जॉर्ब कर पाए। तो नैनो पार्टिकल्स का डिजाइन हुआ, फ्लूइड का डिजाइन हुआ, सॉलिड्स का डिजाइन हुआ, सारा चीज ही सिमुलेशंस का हो सकता है। तो सारा चीज हम टेस्टिंग कर कर उसके बाद ही हम प्रोडक्ट के लिए जाते हैं। राइट। सो ये तो आपने बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है और बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपने हमें दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि जितना हमको पता है सेंचुरियन इज ऑलवेज अ लिटिल मोर देन अ रेगुलर यूनिवर्सिटी, इट्स स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, स्टूडेंट्स को बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी एक्सपीरियंस करने का, सीखने का, करके देखने का, किसी और को करते हुए देखने का एक लाइव मौका मिलता है। सो स्टूडेंट्स का कितना
पार्टिसिपेशन रहता है और उनका इंटरेस्ट कैसे कितना रहता है और कितना स्कोप उन्हें मिलता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग जी, का? तो हमने क्या किया है, हर सिलेबस में जैसे हीट ट्रांसफर हो गया, तो वहाँ पर थोड़े सिमुलेशंस डाले हुए हैं। Practicals may need experiments, some simulations. So you can also validate the experiments also. Validate means आप सेम चीज सिमुलेशन पे कर रहे हैं कंप्यूटर में, सेम चीज आप एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर वैल्यूज? ओके, सो वेदर द सिमुलेशन इज वैलिडेटिंग विद एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स और नॉट। तो उस तरह से हम करते हैं। सारे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा हमने सिमुलेशन डाला हुआ है विद एक्सपेरिमेंटर, सो दैट दे कैन वैलिडेट। ऑल्सो हमारा डोमेन चलता है, हम पूरा एक डोमेन कोर्स ही चलाते हैं, ठीक है, जैसे CFD डोमेन, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। थोड़ा थोड़ा उन्होंने पढ़ लिया अपने सब्जेक्ट्स में। इफ दे वांट डीप लर्निंग रिगार्डिंग द CFD, दे कैन डू CFD डोमेन। ऑल्सो अब इनका है गो टू मार्केट डोमेन, वहां पे FEA सिमुलेशन से CFD सिमुलेशंस करते हैं 7 सेम के बच्चे। तो जैसे ऑटोमोबाइल डोमेन है, बहुत सारा डोमेन्स है, मींस जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है FEA एंड CFD के लिए, हमने उनके लिए स्पेशल डोमेन ही बना कर रखा है। अच्छा अच्छा। तो पहले आपको जब वो फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक आते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको टेस्ट मिल ही जाता है, व्हाट इज सिमुलेशंस, व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर वैलिडेटिंग द एक्सपेरिमेंट्स। अब ये सिमुलेशन कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, उनको पता चल जाता है। बाद में हमको भी अभी जैसे बड़े बड़े सिमुलेशंस हो गए, अब ये व्हीकल का क्रैश टेस्ट हो गया, उसका एरोडायनेमिक पता करना हुआ, ड्रोन का लिफ्ट ड्रैग पता करना हुआ, एयर जैसे हमारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग वगैरह, विंग डिजाइनिंग, ओके, तो लिफ्ट एंड ड्रैग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, तो इसके लिए पूरा ही एक अलग डोमेन चलता है। तो वो प्रॉपरली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, उसमें वो लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं लास्ट में। अच्छा, टुवर्ड्स एंड। हाँ, वो सीखने के बाद उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, इधर आप सेलेक्ट करो या हम देंगे, उसमें आपको कर कर दिखाना है एक बड़ा सा सिमुलेशन, एंड यू हैव टू वैलिडेट विद योर सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। राइट राइट। सो उनको अपना टेक्स्ट बुक लर्निंग भी अप्लाई करने का एक मौका मिल जाता है। एंड आई थिंक इससे पहले कि वो अपने जॉब्स में, रिस्पेक्टिव जॉब्स या फिर इंडिपेंडेंट वेंचर्स में मूव इन करे, उनको एक एकदम एक्सपीरियंस रहता है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो आपको लगता है कि ये हैंड्स ऑन लर्निंग कोई बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है? अगर मैं सिर्फ बुक्स में पढूँ, लेट्स से सिमुलेशन, जैसे कि आपने कहा कि वो वैलिडेट करने का उनको मौका मिलता है, तो अगर मैं बुक्स में ही सिर्फ पढूँ इन सब के बारे में, तो शायद मुझे उतना समझ नहीं आए जितना मैं सिमुलेटर के सामने या फिर सिमुलेशन के साथ अगर मैं कुछ खुद से देख रही हूँ। तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ करता है फॉर स्टूडेंट्स करियर एंड आगे चल के जब? जी, जी मैडम, अभी क्या हो रहा है ना, इंडस्ट्री अभी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है, चाहे हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गई है, अभी वो पहले क्या था ना, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अब उनको ट्रेंड लोग चाहिए। राइट, टू कट डाउन ऑन कॉस्ट एंड टाइम एंड एवरीथिंग, हाँ, बिकॉज पहले क्या होता था, हम ट्रेन कर दे रहे हैं भाई, और वो लोग क्या कर रहे हैं, निकल जाते हैं, हमारा तो पैसा टाइम वगैरह जो बिल्कुल उनका। बिल्कुल, वो वहां से ट्रेनिंग लेके कहीं और। जी जी, अभी इसीलिए हमको पहले से, मतलब कंपनी को पहले से स्किल चाहिए, हम वो स्किल बच्चों को पहले से ही दे दे रहे हैं। अभी जैसे हमारा LNT में बहुत सारे बच्चे गए हैं, मैकेनिकल एरोस्पेस के गए हैं, फिर टाटा टेक्नोलॉजीज में गए हैं, जहाँ पे सिमुलेशन कैड मॉडल बनाते हैं, वो डिजाइन करते हैं, सिमुलेट करते हैं, एंड दे विल कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री। So many of the students are well placed in LLT, Tata Technologies, and other simulation based companies. Okay, जहाँ पर they will simulate for light design, they will simulate for propeller design, they are also simulating for chassis design. राइट So all that they are doing for, they are working good in their industry. राइट। सो इज इट सेफ टू से दैट स्किल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का अपना ही बेनिफिट है, इट हैज इट्स ओन पर्क्स एंड एडवांटेजेस जो उनको आगे जाके हेल्प करता है? जी, जब हमने मैकेनिकल किया हुआ था, जैसे मैंने मैकेनिकल किया हुआ था मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम से, तो अभी वो सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंटो,
मॉनिटर। हम वहां पर भी कटिंग एज था जब मैं कर रहा था, लेकिन जो अभी मैं दे पा रहा हूँ शायद मुझे नहीं मिला। जी। ठीक है, मैंने ये डेवलप किया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने बोला, डीएन सर ने बोला कि भाई तुम सीखो एंड देन तुम सिखाओ। जी। अगर आपको नहीं आता आप सीख कर सिखाओ। तो मैंने पीएचडी भी अपने सिमुलेशन पे ही किया। मैं उसी चीज से इंस्पायर हुआ। मुझे सिमुलेशंस उतना नहीं आता था, बिकॉज जब हम तो आपको बताए उस समय पे सिमुलेशंस नहीं हुआ करते थे। अगर होता भी था तो हमारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमको उतना वाइडली और अवेलेबल नहीं नहीं था। था। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं अप्रोच किया, यहाँ पर हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए गए, हाई कॉन्फ़िगरेशन। अब इन सब चीजों के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप्स चाहिए। तो जैसे i7 प्रोसेसर विद 16 GB रैम, ग्राफिक्स चाहिए 8 GB। तो इवन हमने और अच्छे अच्छे प्रोसेसर भी, जेनन प्रोसेसर भी मंगाए हुए थे। तो इससे क्या होता है ना, इससे सिमुलेशन फास्ट हो जाता है। आप स्लो पीसी में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने प्लेटफॉर्म एंड मींस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही प्रोवाइड किया जिससे ये पॉसिबल हो पाया। जी। सो यूनिवर्सिटी का काफी बहुत एनकरेजमेंट था। बहुत इंकरेजमेंट है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये आपको इंकरेज करेंगे, और आप सीखकर स्टूडेंट्स को सिखाइए। जी। तो यहाँ पे सीखना सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं होता है, एजुकेटर्स का भी यस होता है, यस एंड इट्स अ यस कंटिन्यूअस यस, प्रोसेस। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप सीखेंगे नहीं तो क्या सिखाएंगे? बिल्कुल। बिकॉज लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज नॉट कि आप सीख लिए हैं, क्योंकि आप देखेंगे हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कुछ सीखा नहीं पाएंगे, आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट इवन। हाँ, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ सो फास्ट पेस्ड, कब कहाँ क्या नया इनोवेशन आ जाए, जी 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 क्या जी नया जी टेक्नोलॉजी जी आ जी जी जाए, जी और एक तो अपडेटेड रहना, फिर अपडेटेड जी रह के उस चीज़ को सीखना, जी फिर जी जी सिखाना, इट मस्ट बी अ जी टास्क। जी सो नाउ दैट वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, मस्ट बी गेटिंग ऑल द मोर ईज़ियर फॉर यू। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, तो मैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले सेंचुरियन को प्रेफ़र क्यों करूँ? एज़ इवन एन एजुकेटर आप क्या बोलना चाहेंगे? इवन नॉट मैकेनिकल, आल्सो एरोस्पेस, राइट। एरोस्पेस एंड सिविल। आप इसीलिए मैकेनिकल, एरोस्पेस एंड सिविल कोर ब्रांचेस को सेंचुरियन में प्रेफर कीजिए, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंट ही केवल ना नहीं सीख रहे हैं। अभी एआई का जमाना है, अभी सिमुलेशंस का जमाना है। हमको सिमुलेशंस, एआई एआई एक तरह का हो गया। उनके आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, देन इट इज गिविंग आउटपुट। राइट। So you are actually predicting what will happen. Then you are going to make that product. नहीं तो आप डायरेक्ट बनाएंगे तो आपका तो वेस्टेज हो जाएगा ना। सो सिविल के लिए हमारे स्ट्रक्चरल चाहिए, स्ट्रक्चर, एपीए सिमुलेशंस वेयर वी डिटरमाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड अदर थिंग्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इवन मैकेनिकल एंड एरोस्पेस को भी एफईए एंड सीएफडी चाहिए। तो ये इंडस्ट्री में डिमांड है। अब क्या हो गया, हम तो ये दे रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज में इतना नहीं है। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर जो हमने लाया हुआ है डसॉल्ट है, ये हमने डसॉल्ट को सॉफ्टवेयर जो लाया हुआ है, सिमुलिया है, कैटिया है, डेल्मिया है, इवन सिस्टम इंजीनियरिंग डेल्मिया। डेलिंग सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है मैडम? जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हम पीपीटी बनाते हैं, उसमें डिफरेंट ब्लॉक है। दिस इज बैटरी, राइट। दिस इज एक्सीलेटर, दिस अलग इज अलग हम स्पेसिफाई करते हैं जी। एंड सब चीजें। when you are connecting it Hmm. and when you run it, it will give you, oh, this much battery will give this much power and this much acceleration, this much rpm. ओके, सो इट इज सिस्टम इंजीनियरिंग। डाटा पहले से बैटरी का क्या, आप इनपुट दीजिए, यू आर गेटिंग द आउटपुट। दिस इज सिस्टम इंजीनियरिंग मींस यू आर you have the blocks, like you have the battery, motor, you have the chassis, and like physically when you are trying to make a vehicle and test it. Similarly you can do in delmia in system engineering। हम उसको सिस्टम इंजीनियरिंग बोलते हैं। जी। पहले से जो है हम ब्लॉक्स को अरेंज करके कनेक्ट करते हैं, हम रन करके देखते हैं, अच्छा ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया। ये एफईए सीएफडी नहीं है, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, ये डेल्मिया हो गया।
तो इस तरह का सॉफ्टवेयर है हमारे पास हार्डवेयर है, तो हम ट्रेन कर पा रहे हैं, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम जा पा रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर कर, और वो जॉब भी ईज़िली उनको मिल पा रहा है। सो बच्चों को बेसिक टेक्स्ट बुक नॉलेज या फिर नॉर्मल एकेडमिक्स में जिनका वो उतना कोर्स होता है उनका, उसके अलावा आई थिंक आप उन्हें और भी आर्म करते हैं हाँ। विथ एक्सपीरियंस, जी। हैंड्स ऑन लर्निंग। और जैसे कि आप बोल रहे हैं, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जिनका एक्सपीरियंस उनको आगे चल के अपने करियर पाथ में बहुत ही ज़्यादा एक एज देता है, which makes them a little more better than the others or the competitors या फिर उनके जितने colleagues होते हैं from other universities. So what would be that one message जो आप students को देना चाहेंगे जो ये podcast देखते हैं, ये hope में कि अगर मैं mechanical engineering या aerospace engineering या फिर civil करना चाहूँ तो मैं यहाँ से करूँ, वो एक क्या message रहेगा as an educator to a student directly? जी, if you want to learn from basic to enhanced and you want the application, you want to do things directly from your hand and want to see means how a system works, you can approach our university. You can test the things. You can simulate the things. You can go for startups there. You can write a funding project. You can collaborate with teachers and even with different industry members. So when you know something, that will add to your CV that you know something related to that is needed in industry. Right. So it is. It's worth giving it a shot. Yes. All right. So I would definitely like to thank you for finding out time, joining us, and educating us all so much about the edge that we have as an university, especially in mechanical engineering, aerospace engineering. आपने हमें इतना कुछ बताया, and I'm sure जो viewers आज ये episode देख रहे हैं, specifically with the interest in these particular career paths, they must have gotten an idea about what all we have here. And an educator like you, who has had so many publications, and you're also a PhD holder, और आप constantly आप learning और teaching की बातें कर रहे थे, आप खुद सीखते हैं every single day so that you can give the updated information and knowledge to the students. I think it was very, very enriching. Thank you. Thank you. बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया for joining us on the podcast. Thank you.